Good morning, all of you. Myself Aditya Kumar Sahu, Faculty of Electrical Engineering Department, Bhubanananda Odisha School of Engineering, Boskata. Today, we will discuss about electrical measurements and instrumentation. It is a fourth semester topic of electrical engineering. What we have discussed in previous class is measuring instrument, why we need measuring instruments. The contents we have discussed, accuracy, precision, errors. This will continue. These are the indicating type instruments, display type instruments we can say. It shows only display. What is measurement? Definition of measurement. What is measurement? Measurement value is, which is a unknown value is called measurement. Types of measurement: fundamental quantities, derived quantities. What is instrument? Direct method of measurement. So we have discussed that गोटे डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट आम कौ कौ प्रकार जिनस को मापी पार लेंथ मास आउट टाइम लेंथ मास एंड टाइम को आम कौन करवा डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट को फीड करवा ता वैल्यू इंस्ट्रूमेंट ताकू शो कर डिजायर्ड आउटपुट रे देन इनडायरेक्ट मेथड रे एठी गोटे टर्म लिखाई जी calibrated system. What is calibrated system? तो calibrated system shows और calibrated system जोड़ थाए आमे सेठी जानिबा को पाउ जे मेजरमेंट ठीक अछि जेमति आमे गोटे पेट्रोल पंप को जानती पेट्रोल पंप रे आमे देखंती वैल्यू कोन थाए जेतला आमे पेट्रोल 200 टंकार भरन दिसे कोन कहना जीरो सेटिंग को देखंत सर जीरो सेटिंग देखिलो आमे पकेले 210 टंकार तेल पकेले आम देखिए 210 टंकार तेल होगा देन आम जापारे हाँ आम ठीक भैल्यू आमको जी अमाउंट जिनस आम पाई से ठीक अच्छे केमती क्या सकाश से जिनस हो पार ना कैलिब्रेटेड सिस्टम सकाश से हो पार तो व्हाट इज कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन मीन्स आम से जीरो वैल्यू भी सेट कर 210 जोटा कि आम जहाँ भी वैल्यू देते आम जी अमाउंट पेट्रोल किणुंट से वैल्यू दे पार इन दैट केस जदि आम गोटे एमिटर एग्जांपल ना प्रीवियस क्लास रे जो आम एमिटर एग्जांपल नहीं थे जे हमर रजिस्टर अच्छी 10 ओम एमिटर ताको 100 वोल्ट इनपुट दौरान किंतु एमिटर रे प्री डिफाइंड वैल्यू बा कैलिब्रेशन सेठी नहीं सॉरी एमिटर रे कैलिब्रेशन ठीक ठाक नहीं तो ऑटोमेटिकली यदि कैलिब्रेशन ठीक ठाक नथिबो तो मे बी तुमर पॉइंटर बा इंडिकेटर टा जीरो रे सेट हेनी यदि जीरो रे सेट हेनी तो जहाँ भी आम वैल्यू पाँच से इनकरेक्ट वैल्यू पाँच तो कैलिब्रेशन सिस्टम हिसाब से आम ठीक से कहीपर ना जी हाँ सर 10 एम्पियर करेन्ट जाइए बोली मे बी सी 9 एम्पियर करेन्ट जाऊँ सी आमको 10 एम्पियर शो कर तो कैलिब्रेशन सिस्टम मीन्स वी हैव टू फास्ट चेक फॉर जीरो सेटिंग एंड देन चेक फॉर फाइनल सेटिंग एत सब पर भी इंस्ट्रूमेंट कौन ठीक थाए एत सब पर भी आम कौन आइडेंटिफाई करें कि ना जहाँ भी आम पाखे वैल्यू अच्छी 10 एम्पियर करेन्ट दौची से ठीक अच्छी ताकू आम से जो वैल्यू को आम चेक करते क्या सहित ना ट्रू वैल्यू सहित तो कैलिब्रेटेड सिस्टम टोटाली डील्स विथ कैलिब्रेटेड सिस्टम टोटाली डील्स विथ आउटपुट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम बट नॉट डील्स विथ the accuracy of the instrument. Accuracy of the instrument, we have to check the output value we get with that to be compared with the true value or input value.
suppose by using the instrument we are getting 9.9 ampere current. Ampere current. We will say that this 9.9 ampere current is true or actual value of current which we are getting by connecting the resistor and voltmeter in that particular manner. But no, we already know the predefined value, that is true value, and true value is somewhat different. What? True value is our 10 ampere, and 10 ampere current is the actual value of current, and this measuring instrument we are getting are the fault type fault, and this fault can be rectified by again calibrated the system to zero setting. Indirect type instrument में कौन देख रहे ना, these methods are used where the desired parameter to be measured is difficult to measure. जहाँ भी हमारा parameter अच्छी ताको हमें ठीक से measurement directly करी पार ना हंती, ताहले हमें कौन करबे ना indirect type रो measurement हमें करी परिबा. We measure directly, but it has got some correlation with some other parameters. हमें directly तक measurement करी पार ना हंती, तार अलगा कौन सी value सहित relation अच्छी, जमती कि हमें चाहिए जे आम पाखे वाटमीटर ना, आम पाखे वाटमीटर ना, आम कि जानी वाटमीटर आमर कौन मेजरमेंट करे, वाटमीटर आम कौन मेजरमेंट करे ना पावर मेजरमेंट करे. आम पाखे वोल्टमीटर अच्छी, एमीटर अच्छी, ता सहित कॉस फाइव मीटर भी अच्छी, पावर फैक्टर मीटर आम कहते, पावर फैक्टर मीटर सीएनटी रे तुम पढ़ाई थी पावर फैक्टर मीटर. तो ये तीन टा जिनस को आम यूज करके आम कौन करवा, ताहले भी आम पावर काढ़ परिबा, ताहले भी आम पावर काढ़ परिबा. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाइव. आम एठी जो वैल्यू पाइबा डायरेक्ट आम वाटमीटर लगेले भी से वैल्यू पाइबा. तो क्लियर हलो व्हाट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. तो इनडायरेक्ट मेथड रे आम पाखे वी डोंट हैव wattmeter directly, but we have the substitute of voltage, substitute of that instrument voltmeter. By using that we could measure voltage, by using ammeter we could measure current, by using power factor meter we could measure power factor, and by multiplying P is equal to VI cos phi we could find the desired value. So this is your indirect method of measurement. Next we come to the instrument used must have three essential elements. जहाँ भी आम इंस्ट्रूमेंट यूज करवा तापर तीन टा जिनस थिवार अच्छी, गोटे डिटेक्टर. डिटेक्टर माने कौन ना, से कौन सिग्नल टाकू नब से डिटेक्ट करिबार अछि, से करंट सिग्नल को नब ना वोल्टेज सिग्नल नब से डिटेक्ट कर जे हाँ यहाँ करेन्ट सिग्नल आपको मत डिजायर्ड आउटपुट बा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है मुझे मेकानिकल सिग्नल कन्वर्ट करने चाहूँ. देन दरकार एंड इंटरमीडिएट ट्रांसफर सिस्टम, जे कि तुम इंटरमीडिएट ट्रांसफर सिस्टम गोटे एग्जांपल नहीं आम गोटे PMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट जो एग्जांपल नेबी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जोटा कि तुम आगू अच्छी. तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल रे से काम करे केमती आम गोटे छोटा एग्जांपल देदेवी जे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल ताकू आम PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट कहती. दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर करंट एज वेल एज वोल्टेज ऑफ DC वैल्यू. PMMC type instrument can measure only DC value. We will see how. देखो तो परमानेंट मैग्नेट आमर ये अच्छी नॉर्थ पोल साउथ पोल, आम जानते नॉर्थ पोल साउथ पोल को फ्लक्स फ्लो करे. देन ता भितर आम रखी गोटे कॉइल कॉपर कॉइल, एटा हूँ गोटे कॉपर कॉइल.
देन एठी कौन प्रिंसिपल यूज होउची ना व्हेन एवर ए करंट कैरिंग कॉइल आदर आम कौन दौरान आम इनपुट सिग्नल दौरान करंट इनपुट रे आम देले इनपुट रे आम देले कौन ना करंट तो डिटेक्टर एठी जहाँ अच्छी से डिटेक्ट कला कि इनपुट रे आम करंट दौरान देन इंटरमीडिएट ट्रांसफर सिस्टम ये इंटरमीडिएट ट्रांसफर सिस्टम ये कौ प्रकार फंक्शन ये कम कला ना आम जानते फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन एवर ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैकेनिकल फोर्स तो ये कौन कला ना मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस कला से मैकेनिकल फोर्स तुम पॉइंटर ऊपर पड़ला पॉइंटर्स देन मूव कला पॉइंटर देन जीरो वैल्यू जी आम करेन्ट रीडिंग अच्छी से पर्यंत मूव कला सी अलग कनसेप्ट कौ जगह रे फुल स्केल डिफ्लेक्शन सब दब कि तो से सब जिन आगे देखा तो आम ये जानले कौन द इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी आम लगुच धर आम गोटे एग्जांपल ने पीएमएमसी टाइप रो सी कौन से डिटेक्ट कर इंटरमीडिएट ट्रांसफर सिस्टम रे देन इंडिकेट से कर ये हूँ तुम गोटे इंस्ट्रूमेंट हैव मस्ट थ्री थिंग्स इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज को प्रकार इंस्ट्रूमेंट आम पाखे अच्छे मेकानिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट जमीन कहली कि माइक्रोमीटर बारोमीटर माइक्रोमीटर रे आमे कौन करूँ ना स्मॉल थिकनेस ऑफ मटेरियल को मेजर करूँ माइक्रोमीटर सब आसला मेकानिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट बारोमीटर प्रेशर मेजरमेंट करूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर इक्वल इलेक्ट्रिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट आर वोल्टमीटर एमीटर ये सब जिन आसो तुम इलेक्ट्रिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट रे जदि आम इलेक्ट्रोनिक्स टाइप रो इंस्ट्रूमेंट कथा देखिए जमीन कि सीआरओ जो कि आम वेव फॉर्म ड्र करूँ अदरवाइज आम देखिपर जो ईसीजी हुए ईसीजी हुए मेडिकल पर्पज जाले सेठी भी आमर जो इंस्ट्रूमेंट यूज कहते इलेक्ट्रोनिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट जो कि आम डायरेक्टली कर पाइपर तो नॉर्मली आम देखिए इलेक्ट्रोनिक्स टाइप रो इंस्ट्रूमेंट जब आम देखो तादे वोल्टेज और करंट डिटेल फॉर्म में आमर आस जाऊँगी तो आम नॉर्मली आम कौन करवा नेक्स्ट पेज में से देखा दे एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोनिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट तो इलेक्ट्रोनिक्स टाइप रोइंस्ट्रूमेंट को आम बेसी यूज करूँ कौन ना दिस हैव these 3 points these 4 points what now these have higher sensitivity what is sensitivity कौन ना जी आम इनपुट दो जब से हिसाब से आम आउटपुट पाइले ताको आम कहवा सेंसिटिविटी मानकर एपटे आम इनपुट देइचंती इंस्ट्रूमेंट को इनपुट देइचंती 1 एम्पियर किंतु 1 एम्पियर पाई सी देखो टोटल डिफ्लेक्ट कर दो फ्रॉम 0 वैल्यू टू नहीं 10 तो डिफ्लेक्ट सी कर 10 एम्पियर देन सेंसिटिविटी इज व्हाट इज हायर अल्प चेंज इन स्मॉल चेंज इन इनपुट सकाशे आम कौन दौर ना लार्ज चेंज इन आउटपुट दौर जोटा कि आम अल्प वैल्यू आम देले भी आम कम हो हायर सेंसिटिविटी लो पावर कंजप्शन फास्टर रेस्पॉन्स एंड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी आम सब जगह को आम पोर्टेबल जिन इलेक्ट्रोनिक्स को क्यारी करें गोटे जिन जगह अन्य जगह क्यारी भी करें से आम एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोनिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट देन आसो फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आम जो इंस्ट्रूमेंट रहा से सब कौन कौन सब फंक्शन करती फास्ट आसो इंटीग्रेटिंग फंक्शन सकाश आम कौन करूँ ना गोटे फंक्शन कौ प्रकार काम करे गोटे गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौ प्रकार सब काम करे इट हेल्प्स सप्लाइंग इनफॉरमेशन टू अननोन क्वांटिटी जहाँ भी आम पाखे अच्छी अननोन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड जहाँ भी अच्छी सी कौन कर सप्लाय कर तो इंस्ट्रूमेंट कौन कर ना जहाँ भी अननोन क्वांटिटी है ताकू सी कौन कर ना सेंस कर तार पाखे कैपेसिटी थी सप्लाय कर नहीं पार्थव है इंटीग्रेटिंग फंक्शन देन रिकॉर्डिंग फंक्शन भी तार रही अच्छी इट हेल्प्स द इंस्ट्रूमेंट टू मेक ए रिटेन रिकॉर्ड ऑफ अननोन क्वांटिटी आम देखा रिकॉर्डिंग फंक्शन कौ प्रकार इंस्ट्रूमेंट रे काम कर तार सब अच्छी आगू आम देखा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ये सब जिन अच्छी तो यू फंक्शन गुराक पर्टिकुलारली से इंस्ट्रूमेंट मानक ही काम करता है देन आसला कंट्रोलिंग फंक्शन आम देखिए जस्ट ए पूर्व कहली कि जदि आम 1 एम्पियर करेन्ट दौरान देन सी जा 1 एम्पियर पाखे जा अटकी जबार अच्छी जदि सी टोटाली आम 1 एम्पियर करेन्ट दौरान सी जा देखला के 10 एम्पियर करेन्ट शो करुँच देन से कंट्रोलिंग सिस्टम काम करू नहीं तो कंट्रोलिंग फंक्शन आम देखा आगू तो कंट्रोलिंग फंक्शन में कौन ना इट हेल्प्स द इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द ओरिजिनल मेजरमेंट जहाँ भी आम ओरिजिनल वैल्यू देते तो से हिसाब से जमी मेजरमेंट आसो तो से फंक्शन जी कर तो से प्रकार फंक्शन को आम कौन कहना कंट्रोलिंग फंक्शन आम कहले
तो मेजरमेंट सिस्टम आम देखा एप्लिकेशन को जगार से लगुच कौन कौन लगुच ना मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस आम जिते बड़े आम फास्ट कही फास्ट क्लास रे जे आम कौन कर पाखे दी प्रकार इलेक्ट सब जेकोसी प्रकार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सेठी गोटे थाए डिजाइन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बा मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन आम को प्रकार इंस्ट्रूमेंट को आम यूज कर वोल्ट मीटर एमीटर एनर्जी मीटर वाट मीटर फ्रिक्वेंसी मीटर को आम कौन कर मॉनिटरिंग प्रपोजल यूज कर देखुं जहाँ भी आम डिजाइन कर जो प्रकार मेसीन डिजाइन कर जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट आम डिजाइन कर चलियापी आम ऑपरेशन को स्मूथ करने तो से सब तार डिजायर्ड वैल्यू रे काम कि ना अधिका करेन्ट जदि हो देन से सब जिनस कौन हम डिफेक्ट देखा से डिजायर्ड वोल्टेज जो जहाँ भी तार डिजायर वोल्टेज अच्छी जहाँ भी डिजायर करेन्ट अच्छी वोल्ट मीटर आम वोल्टेज मेजरमेंट करूँ एमीटर रे करेन्ट एनर्जी मीटर रे पावर एनर्जी मीटर रे टोटाल आमर एनर्जी आमर कंजम्पशन केते हला वाट मीटर रे पावर एंड फ्रिक्वेंसी मीटर रे आमर डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी केते अछि आम से सब जिनस को मेजरमेंट करथौ आम ताले फास्ट कौन जानले ना मेजरमेंट सिस्टम को आम यूज करिकी मॉनिटरिंग करि परिबा केते आमर वोल्टेज करेंट केते कोन अछि एंड ऑपरेशन ठीक ठाक करि परिबा देखिबा तार जदि अधिका करेंट जाउची कि अधिका वोल्टेज हे गेला आम ताकू कोन करि परिबा मिनिमाइज करि परिबा चेक करी देन एसरा तुमर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन आम तो देन कंट्रोल भी करें हियर द वेरिएबल्स टू बी कंट्रोल एंड शुड बी केप्ट विद इन लिमिट को जिनस को आम कंट्रोल करवा जदि टेम्परेचर हाई हो गला टेम्परेचर जदि हाई हो गोटे मेसीन रे आम देखा टेम्परेचर बा हीट टेम्परेचर इज रिलेटेड टू हीट गोटे मेसीन रे H इज इक्वल टू आम जानते I स्क्वायर RT जदि आम टेम्परेचर को विदिन कंट्रोल करने को चाहूँ आम कौन करवा ना आम ये आई रे भैल्यूटा को कंट्रोल करना जाना जे आई रे भैल्यू निहाती भाव में अधिका अच्छी जो सकाश कि टेम्परेचर आम हाई अच्छी से हिसाब से आमर ह्यूमिडिटी प्रेशर ये सब जिन को भी आम कौन कर ना कंट्रोल कर देन आउ को जगह आम मेजरमेंट सिस्टम को यूज करती फॉर एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस जोटा कि लैबोरेटरी मानक यूज हुए फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज आम यूज करता देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आम मेजरमेंट सिस्टम आम कहीं यूज कर जहाँ भी आम एनालिसिस कले कौन जानले ना सब प्रकार आम पाखे जब इंस्ट्रूमेंट थी ताल आम कौन कर ना मेजरमेंट सिस्टम आम यूज कहीं करती ना आमको दरकार न्यूमेरिकल वैल्यू दरकार कौन दरकार आमको मेजरमेंट सिस्टम आम कहीं यूज करते आमको दरकार न्यूमेरिकल वैल्यू जमती कि मुझे कहली आम 10 एम्पियर 10 सेकेंड 10 डिग्री सेल्सियस तो न्यूमेरिकल वैल्यू हेले गोटे नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंड करि परिबो जे केते एक्चुअली जिनसटा आम जानते बॉडी आम देखुं बॉडी टेम्परेचर सेंस कर बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में पढ़ी केते 94.7 डिग्री सेल्सियस आम जानते तो ये आम जब देखुं बॉडी टेम्परेचर हाई हो गला देन आम जानते आमको किसी डिजीज होती आम यहाँ हूँ तुम गोटे एनर्जी मीटर डिजिटल एनर्जी मीटर एठी आम देखुं कि आमर जो सब मीटर आम जानते थियोरेटिकली पढ़ी आमर एतिकीटा बल्ब जलिले आम एतिकी यूनिट आमर उठिबो सेटा को आम ये कौन कर देखिपार तो न्यूमेरिकल वैल्यू रे जिनस गुराक पाइबापी आम कौन करती ना मेजरमेंट सिस्टम यूज करती तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो पाती केमती पाती ये दुटा जिनस आम पाखे थी आम न्यूमेरिकल वैल्यू पाइपर गोटे दरकार आम पाखे ट्रू वैल्यू जोटा आम इनपुट देवा देन आमर गोटे अच्छी मेजर्ड वैल्यू जोटा कि आम आउटपुट रे पाइबा तो फास्ट जानिबा आम ट्रू वैल्यू कौन एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम रेटेड वैल्यूज मीन्स आम पाखे फॉर्मूला अवेलेबल अच्छी आम कौन कर ना रेटेड वैल्यू जहाँ भी अच्छी आम ताधुर आम कौन कर एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम रेटेड वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू को आम फॉर्मूला पकईकि आइडेंटिफाई कर देन मेजर्ड वैल्यू क्या कहवा एनी वैल्यू और एनी रीडिंग कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजरमेंट सिस्टम और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आम यूज कले आम कौन कले ना इनपुट आम देदेले ट्रू वैल्यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एटा मेजरिंग सिस्टम आम जहाँ भी आउटपुट पाइले तो सहीटा ही हो तुम मेजर्ड वैल्यू तो से दुटा भितर आम कौन करवा कंपैरिजन करवा कंपैरिजन करके आम कौन पाइबा ना न्यूमेरिकल वैल्यू पाइबा सपोज आम गोटे एग्जांपल नबा
गोटे मोटर तो मोटर रे आम जानते जे आम स्पीड मेजरमेंट करते जो डिवाइस रे ताको आम कौन कहते ना टेकोमीटर कहते ये गोटे टेकोमीटर डायग्राम दिखाई टेकोमीटर आमर गोटे हूँ मेजरिंग सिस्टम तो मेजरिंग सिस्टम आम कौन करवा ना टेकोमीटर रे मेजरमेंट देखा जे स्पीड आमर केते अच्छी तो अदरवाइज आम आमर स्पीड कैलकुलेशन गोटे फॉर्मूला अच्छी डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको आम यूज करी गोटे जेकोसी मोटर गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटे एग्जांपल मुझे दूसरी तार आम स्पीड आम कैलकुलेट कर दे पार जहाँ भी आम फॉर्मूला बेस्ड जिनस आसला सी आस तुम ट्रू वैल्यू मनकर ट्रू वैल्यू ये तुम आसला कि 3333 आरपीएम मनकर आसला ट्रू वैल्यू सेटा आम चेक करवा क्या थ्रू ना टैकोमीटर थ्रू चेक करवा जे आम वैल्यूटा से आसुची कि नहीं जदि टैकोमीटर आम ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करे टैकोमीटर स्पीड मेजरमेंट मनकर मेजर वैल्यू आम देखेला 3330 तो सब ट्रू वैल्यू सहित चेष्टा करा भाई इंस्ट्रूमेंट नवा जी कि ट्रू वैल्यू सहित पाखापाखि मैच कर जाऊँ जदि टैकोमीटर रे भी जदि तुम मेजरमेंट देखेला केते मानेकर टैकोमीटर भी तुम मेजरमेंट आरपीएम देखेला देन इट इज ए एब्सोल्यूट टाइप इंस्ट्रूमेंट माने दिस इंस्ट्रूमेंट हैव नो एरर आम डायरेक्टली से टैकोमीटर रे आम कौन कर ना डिजायर्ड वैल्यू को डायरेक्टली मेजरमेंट कर विदाउट एनी एरर किंतु नॉर्मली एमती हो न था सब गोटे इंस्ट्रूमेंट रे ग्यारंटीड एरर थाए माने मैन्युफैक्चर तो डिजाइन करती से सब तादरे गोटे इंस्ट्रूमेंट थ्रू कौन करते ना ग्यारंटीड एरर जाए थाए जो द्वारा कि मेजरमेंट कर देखा चाहते आम इंस्ट्रूमेंट रे 1% एरर ही रही तो नॉर्मली कौन सी प्रकार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट रे आसी न थाए देन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू भीतर आम कंपैरिजन करवा जहाँ भी तुम डिफरेन्स आसला से आम एरर आकार रे प्रकाश करवा तो से सब जिन को आमर कहते क्यारेक्टरिस्टिक आम कौन मेजरमेंट कर कौ भाया गोटे जो मेजरमेंट कले से कौ प्रकार क्यारेक्टरिस्टिक तुमको शो कला एक्यूरेसी शो कला कि आमको प्रिसिशन शो कला आम कौन से शो कला आमर जो प्रकार मेजरमेंट आम ने से आमको कौ प्रकार वैल्यू शो कर एक्यूरेसी शो कर कि प्रिसिशन शो कर कौन शो कर देखा तो नेक्स्ट विल कंटिन्यू एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी कौन ना आर्गुमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग विथ इट्स ट्रू वैल्यू आम चेक कले मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू डिफरेंस इज नोन एज एर एक्यूरेसी एक्यूरेसी विभिन्न प्रकार टाइप्स अच्छी जमती है पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी आम देखुं ना डिफरेंट पोजिशन ऑफ पॉइंटर रे से केते एक्यूरेट देखो जो जगह 2 एम्पियर करेंट रीडिंग करा था से 3 एम्पियर देखो कि प्रत्येक पॉइंट जब आम देखा आम पाइबा पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ स्केल रीडिंग जो प्रकार आम स्केल नहीं टोटाल स्केल हिसाब से जदि एक्यूरेसी आसूची एतिकी देन पर इंस्ट्रूमेंट एतिकी डिग्री मेजरमेंट रे केते आसूची से गोटे प्रकार एक्यूरेसी देन एक्यूरेसी विथ ए परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू तो यह सब जिन आम नेक्स्ट क्लास देखा एक्यूरेसी प्रिसिशन एरर्स टॉलरेंस व्हाट आर दीज थिंग्स तार डेफिनेशन कौन आ कौ जगह काम करे थैंक यू।